Hello and good evening to me, myself, Mom. As you all know that we have started our webinar series, and today in our webinar series, we have with us Dr. Tasneem Ali. Tasneem is a social activist. She's a certified nutritionist and lifestyle consultant athlete and a fitness trainer. She has an exposure in fitness, in nutrition, and she is going to give us a lot of insights on how we can become more conscious and more aware towards our health. So I would love to listen from Tasneem, and I would also love Tasneem to share her own experience through her own life as she takes us through today's session. So over to you, Tasneem Ali. Good evening, Sabri, and good evening, everyone who is listening or who is going to see this webinar. So, as you said about health, Sabri, when I see the topic you have mentioned on my flyer, that health and fitness. So, I love one thing that you put health first and fitness second, because this is the reality. If your health is good, then only you can think about fitness. Otherwise, kya hota hai ki when people see that it's a fitness session or it's a, somebody is giving gyan on what to eat, on nutrition, because the Google is full of all this thing. You can go and Google ke oats khana hai, oats is good, ye nahi, wo nahi. But health is not about, you know, going in gym or doing any kind of exercises and you become fit. So I was thinking कि मैं क्या बोलूं, क्या लेके जाएं, क्या इनको बताएं, and as I requested you that I want to keep this webinar in a very simple language, and I am going to use most of the Hindi because बाद में भी कोई ये देखेगा and when you'll post this on your YouTube channel, so I want this knowledge कि लोगों तक पहुंचे, especially we female. क्या होता है कि we as a mother or as a working ladies or like from the morning हमारी लाइफ भागा भागी की है, especially we females, जो हम हमारे घर के लोगों का ध्यान रखते हैं, like my husband, he needs breakfast on time, his tiffins on time, then in dinner he needs, but when it comes to our health, our nutrition part, we always compromise. बच्चे गए स्कूल, joint family में है, इनको दिया उनको दिया, and when it comes to you, भागते भागते मे बी किचन का वर्क करते करते, मे बी वॉशिंग मशीन चलाते चलाते, we take a cup of tea with a bread in our hand, और कुछ भी खा लेते हैं, जो भी उठा और left over. So the thing is that health, जो health fitness is बहुत बात की बात है. Once your health will get sorted, then comes fitness. क्योंकि क्या होता है, I've seen so many people and I'm into this nutrition thing. रोज के मेरे पास like from last 7 years, so many clients, मैं उनको जब स्टडी करती हूँ, so कहते हैं हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, हम बहुत न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, हम ये भी लेते हैं, मल्टीविटामिन भी लेते हैं, ये भी ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं, फिर भी आई हैव दिस प्रॉब्लम दैट प्रॉब्लम, तो उनका digestion is not correct. So my topic today is completely based on digestion. स्कूल में पढ़ा है हमने, we have seen, we know that diagram of digestion, हमें वो स्कूल में मैम मेहनत कर करके बनाना सिखाती थी, but we have never understood this complicated system of God कि digestion क्या है. मैंने बहुत कोशिश की, आप मुझे कह रहे थे कि अगर मैं कोई स्लाइड कर सकूं या एनीथिंग मुझे मिल जाए, बट सॉरी सबरी, मुझे नहीं मिला. तो सिंपल सी बात है कि योर डाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी थिंग्स, लाइक बहुत सारी बीमारियां. इफ आई say diabetes, arthritis, paralysis, your hormonal imbalance, and anything related to your female related problems, everything start with digestion. That's why मुझे ऐसा लगा कि आज digestion के बारे में सबको बताया जाए. हमें सबको पता है कि क्या है digestion. Food 5 है जिसे हम esophagus कहते हैं, फिर उसके नीचे एक sphincter लगा है, फिर आता है हमारा स्टमक, फिर स्टमक के बाद आता है एक स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि मेरे ख्याल से एक टेनिस कोर्ट जितना लंबा है, फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद आता है हमारा कोलोन. साइड में इधर पैंक्रियाज भी है, इधर लिवर भी है, लिवर के नीचे गॉल ब्लैडर भी है. ये सारी चीजें हैं. ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ईश्वर ने डिजाइन किया है, इसका क्या काम है? इसका सिर्फ एक ही काम है, एंड दैट इज टू डाइजेस्ट फूड. दैट्स इट. बाकी सब बेकार की बातें हैं. आप अपना खाना अच्छे से खाते हो, वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, वही सिस्टम का काम है, एंड दैट सिस्टम डाइजेस्ट फूड, दैट कन्वर्ट इनटू एनर्जी. सो मैं वापस से बताती हूँ, योर फूड पाइप,
उसके नीचे एक स्फिंक्टर लगा होता है, स्फिंक्टर के नीचे आपका स्टमक है, स्टमक के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और उसके नीचे कोलोन। हर एक डाइजेस्टिव पार्ट का एक काम है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से कोई भी चीज इधर उधर होती है, आपको इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, ऑल काइंड ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। इट ऑल स्टार्ट विद योर गट हेल्थ, इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम योर डाइजेशन। सो डाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है? डाइजेशन फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम योर माउथ। कैसे? टीथ से। सुना है, हम बच्चों को भी बोलते हैं खाना चबा के खाओ, चू योर फूड, ग्राइंड योर फूड, राइट? क्यों देते हैं एग्जाम्पल, और हमें भी पता है, बट व्हेन इट कम्स टू अस जल्दी जल्दी खाते हैं, निकल के चले जाते हैं, बिकॉज हमारे बाकी नीचे के सिस्टम में देयर इज नो टीथ। यही ग्राइंड करना है, यही चूव करना है, और फिर वो नीचे जाते हैं। ऑल आवर फूड्स हैव फोर थिंग्स, वन इज फैट, प्रोटीन, कार्ब्स एंड न्यूट्रिएंट्स। अब हर चीज अलग जगह जाके डाइजेस्ट होती है। माउथ में कुछ नहीं डाइजेस्ट होता, सिर्फ एक ही चीज डाइजेस्ट होती है, दैट इज एमसीटी ऑयल। एंड व्हाट इज एमसीटी ऑयल? एमसीटी ऑयल इज योर कोकोनट ऑयल। कोकोनट एक ऐसा ऑयल है जिसमें मोर देन 60 to 70% एमसीटी अवेलेबल है, एंड दैट्स व्हाई अक्रॉस द वर्ल्ड आजकल लोग एमसीटी ऑयल के पीछे, सो मेनी न्यूट्रिशनिस्ट, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, dietitians, doctors, they recommend you to eat this MCT oil or coconut oil, या सूखा नारियल खाओ, कच्चा खाओ, ये खाओ, because it has the maximum MCT oil. अगर आप कुछ डाइजेस्ट करने के लायक नहीं है, कुछ भी खाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, start with few spoon of MCT oil. Start with 2-3 spoons of MCT oil और अपने आप को लेके जाओ till 7 to 8 spoon of MCT oil, and then see the wonder how your digestion system do the wonder. हमारे टंग के नीचे एक लाइपेज करके एक एंजाइम निकलता है जब हम एमसीटी ऑयल लेते हैं। एज आई टोल्ड यू कि ओनली वन थिंग डाइजेस्ट इन अवर माउथ, यही डाइजेस्ट हो जाता है, दैट इज योर एमसीटी ऑयल। सो जैसे ही आपने लिया, लाइपेज जनरेट होता है, उसने उसको डाइजेस्ट किया एंड आपका सिस्टम अच्छे से काम करना शुरू हो जाता है। सो व्हाट इज एमसीटी ऑयल? इट इज अ मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड जो कि मुंह में ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज ए बेस्ट ऑयल। इवन आई ऑलवेज रिकमेंड कि कुक योर फूड इन एमसीटी ऑयल। खाना नहीं बना सकते हो एमसीटी ऑयल में तो एटलीस्ट हैव स्टार्ट विथ 3 स्पून्स और अपने आप को 7-8 स्पून्स तक लेके जाओ दिन भर में। एवरी 2 hours 2.5 hours एक कोकोनट ऑयल की चम्मच लेके उस लेवल तक पहुंचो। सो जिसे भी डाइजेशन इश्यू है, ब्लोटिंग है, फटीग है, आपकी मील्स के बाद खाना खाया बहुत थका थका लग रहा है, गैस, बर्प्स, एसिड रिफ्लेक्स, कोई भी है, टेक एमसीटी ऑयल। नाउ आपने सुना होगा, यू हैव heard, you have read somewhere that आपकी बॉडी एसिडिक होनी चाहिए, आपकी बॉडी एल्कलाइन होनी चाहिए। एक्चुअली योर ब्लड शुड बी एल्कलाइन एंड योर बॉडी शुड बी एसिडिक। जो पीएच स्केल होता है 0 से 7-8 का, सो हैव यू सीन बैटरी? बैटरी इज द मोस्ट एल्कलाइन फॉर्म जो पाया जाता है यूनिवर्स में, इज योर बैटरीज, सबसे ज्यादा एल्कलाइन होती है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है योर स्टमक। स्टमक बहुत एसिडिक होना चाहिए, बहुत ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपका फूड नीचे आता है, उस फूड में से जो प्रोटीन पार्ट होता है दैट डाइजेस्ट इन स्टमक, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत मेहनत लगती है स्टमक को। सो उसको एसिड भी चाहिए, उसको एक पेप्सिन भी चाहिए। जब आपकी ईटिंग रॉन्ग हो जाती है, व्हेन यू ईट लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फूड्स, व्हेन यू ईट लॉट ऑफ जंक प्रोसेस्ड फूड, सो क्या होता है कि आपका वो एसिड खराब हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या आप बहुत लंबे समय तक कोई ऐसी मेडिसिन पे रह रहे हैं तो वो खराब हो जाता है। सो आई ऑलवेज रिकमेंड, सॉरी मैं बीच में एक बात बोलूंगी कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आई वांट यू टू सिट विथ pencil and pen and paper, because आगे आगे I am going to give you so many tips how to correct your digestion, because मैंने किया है। I was example who had a very bad digestion sometime, बहुत सारी प्रॉब्लम्स से मैं निकल रही थी, और वो सारी प्रॉब्लम्स मैं भी बताऊंगी आपको, so then you will come to know that in a day to day life you are dealing with this problem। हाँ मुझे भी होता है, मुझे भी होता है। So just write down so that next time जब भी आप पढ़ेंगे,
आपके पास होगा, यू डोंट नीड एनी डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, आप घर पे अपना डाइजेशन ठीक कर लेंगे. So I was saying it because of your wrong eating, because of your dependency on, this processed foods and junk foods and high carbohydrate foods, क्या होता है, आपका एसिड खराब हो जाता है पेट का. अब पेट का एसिड खराब हुआ, वहां कुछ डाइजेस्ट नहीं होता. So I generally tell people always start your meal with apple cider vinegar. एप्पल साइडर विनेगर एक अच्छी कंपनी का लेके, एंड रॉ फॉर्म का जो अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर होता है, उसमें आप थोड़ा सा वार्म वाटर डालो, थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डालो, एंड हैव इट जस्ट बिफोर योर मील. और जिन्हें बहुत ज्यादा डाइजेशन का इशू है, बहुत ज्यादा एसिड रिफ्लेक्स है, बहुत ज्यादा बर्पिंग होती है, फॉर देम आई ऑलवेज टेल कि आप बीटेन HCl लो. You can easily get it any good pharmaceutical pharmacy, any good pharmacy. Take betaine HCl. कैसे लेना है betaine HCl को? जब आपका खाना आधा हो जाए, with a very small water, have 1 or 2 betaine HCl, depend upon how much your acid is bad in your stomach. एक से शुरू करो, असर नहीं आ रहा, 2 लेना शुरू करो, एंड डेफिनेटली आपका एसिड ठीक हो जाएगा. सो क्या रीजन है आपके एसिड को किल होने का? आप बहुत ज्यादा एंटी एसिड लेते हो. बिकॉज़ आई हैव सीन पीपल, उन्हें एंटी एसिड्स के बिना चलता ही नहीं है. दैट पिंक कलर का बॉटल वी हैव सीन डाइजेशन के लिए है, मार्केट्स में लेके आते हैं. आई नो माय ओन ग्रैंड पेरेंट्स, माय फादर मदर, सबका बन कराया. दे टेक लॉट ऑफ एंटी एसिड्स. आप किसी तरह की डायबिटीज मेडिकेशंस पे हैं, आपका एसिड खराब होता है, यू हैव स्ट्रेस और एनी अदर मेडिकेशंस यू आर टेकिंग, आपका एसिड 100% खराब होता है. और जब एसिड खराब हुआ, खाना डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, वहां से कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होता है. एज आई टोल्ड यू दैट स्टमक को बहुत मेहनत लगती है प्रोटीन डाइजेस्ट होने के लिए. जबान के नीचे आपका MCT ऑयल हुआ, नीचे उतरा खाना, स्टमक में आपका प्रोटीन डाइजेस्ट का प्रोसेस चल रहा है. अब सब कुछ खराब है. एक एग्जांपल देती हूँ. एक टिन है लिड का, उसमें आप खाना रख दीजिए, रखा है, वो सड़ रहा है अंदर, क्या होगा? वो खाने में गैस बनेगा, एसिड बनेगा. और थोड़े टाइम के बाद या कुछ दिन के बाद आप देखोगे कि वो फट से उसका लिड खुला और वो खाना सारा बाहर आ जाएगा. ठीक है, आप करके भी देख सकते हो. स्टमक इज लाइक दैट. स्टमक का एसिड खराब हो गया, डाइजेशन हो नहीं रहा है, पेप्सिन बन नहीं रहा है, क्या होगा? खाना पड़ा पड़ा सड़ रहा है, सड़ रहा है, सड़ रहा है, और वो कहाँ जाएगा? तो एक्चुअली आपको जो फूड पाइप होता है और स्टमक होता है, उसके बीच में एक स्फिंक्टर होता है, वो बंद होता है. जब खाना सड़ गया, जब खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो पड़ा है, तो वो टक से लिड जैसा स्फिंक्टर खुल गया, वो खाना आपके मुंह पे आता है. आप कहते हो बोपिंग हो रही है, खाना आ रहा है, मुझे जलन हो रहा है. देन आप क्या करते हैं? एंटी एसिड ले लिया, ठीक हो गया, उसने आपके स्टमक को, एसिड को और खराब कर लिया. नाउ जो आपकी कार्ब्स है, आपका बैड ऑयल है, गंदा ऑयल, या आपका वेजिटेबल सीड्स ऑयल है, और वो कहाँ जाता है? इन योर इंटेस्टाइन. सो आपका जो इंटेस्टाइन है, वहां पे आई कैन से इट्स अ ग्रैंड फिनाले ऑफ योर डाइजेशन. इट हैपेंस इन इंटेस्टाइन. अब जितने भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, इट ऑब्जर्व इन इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन में ही वो ऑब्जर्व होता है. आप कोई भी विटामिन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, इट ऑल गेट डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. सो क्या होता है कि सबसे पहले खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है बैक्टीरिया की. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझना है. एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है बैक्टीरिया की. अब आप कोई भी तरह का मेडिकेशंस पे हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आप कुछ भी ऐसा ले रहे हैं, वो आपके प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बैक्टीरिया को किल कर देते हैं. आप कोई एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे हैं, जैसे सिर दर्द की दवाई ले ली, हेडेक है बहुत, मैंने देखा है लोगों को सिंपल से हेडेक पे भी दे प्रेफर टेकिंग मेडिसिन. कोई पेन के लिए दे आर टेकिंग मेडिसिन लाइक आइब्रूफिन. ये सारे आपके गट बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. स्ट्रेस, अब बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं. आई नो पीपल दे आर स्वीट टूथ, इतना मीठा खाते हैं, बट उससे क्या हो रहा है कि दैट प्रोटेक्टिव लेयर, दैट जो गट बैक्टीरिया का जो लेयर है, वो डिस्ट्रॉय होता है. क्या है कि हमारा जो सिस्टम में दोनों है. दे हैव गुड बैक्टीरिया एज वेल एज bad bacteria, and your 60% immunity lies in your gut bacteria.
सो ये सारी चीजें जब ये इस लाइन को डिस्ट्रॉय कर रही है, सो हमारा काम है कि हमें उस लाइन पे काम करना है। वी हैव टू सी कि हमारे बैड बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो ना करे और गुड बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो हो। जो इंटेस्टाइन की प्रोडक्टिव लेयर है, उसके बाहर एक गुड बैक्टीरिया की आर्मी होती है। वो आर्मी हमेशा लड़ने के लिए रेडी होती है। आपका इम्यून सिस्टम उस आर्मी से ही काम करता है, वो हमेशा लड़ने के लिए रेडी है। अब आपकी जो रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स है, मेडिकेशंस जो आप ले रहे हैं, या जो भी आप स्ट्रेस ले रहे हो, या वॉट एवर थिंग्स, जो गंदा तेल खा रहे हो, वॉट एवर, उस प्रोटेक्टिव लेयर में होल्स हो जाते हैं। सो आपने सुना होगा कि इसको लीकी गट है, तो वो हमारा लीकी गट हो जाता है। अब समझिए कि व्हाट इज लीकी गट। लेट्स से आपने गुलेटिन खाया। अब गुलेटिन क्या है? आप सब जानते होंगे कि गुलेटिन इज अ प्रोटीन विच इज इन व्हीट। मेरे पास जब बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, सबसे पहले मैं उनसे बोलती हूँ कि आई ऑलवेज आस्क फॉर फ्यू टेस्ट देखने के लिए कि हाउ इंसुलिन सेंसिटिव इज योर बॉडी, योर फास्टिंग ग्लूकोज इज व्हाट, बिकॉज ऑल ये सारा उस पे ही होता है। तो मैं लोगों को देखती हूँ कि वो बहुत इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं भी है तो दे हैव इंसुलिन सेंसिटिविटी, प्री डायबिटिक पे होते हैं वो। सो मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि ग्लूटीन छोड़ो सबसे पहले, डेयरी छोड़ो सबसे पहले। तो एक क्वेश्चन आता है मेरे पास कि मैम, हमारे फादर्स, हमारे फोर फादर्स सदियों से ये खाते आए हैं, अब क्यों ग्लूटीन छोड़ना है? पहले क्या था कि जो ग्लूटेन था वो हम डाइजेस्ट कर पाते थे। उसका एक आइकन होता है, वो छोटा होता था। 1950 में जब पाकिस्तान एंड इंडिया में बहुत स्टार्वेशन एंड malnutrition हुआ, मे बी मेजर कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और हम उस पॉपुलेशन एंड वी वर नॉट एबल टू सस्टेन दैट पॉपुलेशन। सो 1950 से पहले जो ग्लूटेन का साइज है, उसके आइकन का साइज था, वो इतना छोटा हुआ करता था। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इट वाज इजी टू डाइजेस्ट दैट। फिर 1950 में एक डॉक्टर हुए, डॉक्टर नॉर्मन बुलियार्ड। उन्होंने कहा स्टारवेशन है, जो है खाने की पूर्ति नहीं हो रही है, लोग भूख से मर रहे हैं, और हम जो है हमें वीट का यील्ड बनाना पड़ेगा ताकि सबको खाना मिले। एंड उसने क्या करा, आइकिन का जो साइज इतना था, जो इजीली डाइजेस्ट होता था, जो पार्टिकल इतना था, वो इतना बड़ा कर दिया। अब उससे क्या हुआ? he got Nobel Prize for the same. You can Google it. डॉक्टर नॉर्मन बुलियार्ड, आप ये गूगल कर सकते हो। एंड ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर व्हाट? इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ व्हीट। अब उसने यील्ड कर दिया, प्रॉब्लम्स तो खत्म कर दी, लेकिन हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। सो प्रोडक्शन होने लगा, खाने की प्रॉब्लम दूर होने लगी, लेकिन क्या हुआ कि हमारा बैंड बज गया। इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, क्या हुआ? हमने ग्लूटेन खाया, माउथ में आया, माउथ से स्टमक में गया। अब स्टमक में तो डाइजेस्ट होता नहीं है, माउथ में होता ही नहीं है, खाली एमसीटी के अलावा स्टमक में वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। एंड इट कम्स टू योर पैनक्रिया। पैनक्रियाज ने भी बहुत डाइजेस्ट करने का कोशिश किया, जान लगा दी। व्हेन पैनक्रिया फेल्स टू डाइजेस्ट, फिर दैट ग्लूटेन कहाँ आता है? इंटेस्टाइन में। And all your problem starts here when your food particles reach to intestine. I have already told in the beginning that intestine में सिर्फ आपके vitamins and minerals ही digest होते हैं, लेकिन अब food particles आ गया। जब gluten टूटता है, when gluten break down into particle, it is known as glutamorphin. और ये जो glutamorphin है, वो intestine से सीधा it goes into your blood. और ब्लड से सीधा कहाँ जाता है? ब्लड ब्रेन बैरियर। नाउ व्हाट इज ब्लड ब्रेन बैरियर? ब्लड ब्रेन बैरियर एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारे ब्रेन के आसपास है, वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ग्लूटेन टूटा नहीं, ग्लूटामॉर्फिन इसमें से निकला, सीधा वो ब्लड ब्रेन बैरियर में चला गया। वहां पे एक रिसेप्टर होता है विच इज नोन एज ओपियोइड रिसेप्टर। आपने देखा है जो एडिक्ट होते हैं, गांजा, अफीम, चरस, अल्कोहल, चेन स्मोकर्स, इस टाइप की चीजें हैं, क्यों हो जाते हैं वो एडिक्ट? वो इसलिए होते हैं कि उनके ओपियोइड रिसेप्टर तक पहुंचती है वो चीज, एंड दे बिकम सो एडिक्ट।
सिमिलरली ये जो हमारा ग्लूटामॉर्फिन जब ब्लड ब्रेन बैरियर में चला जाता है, वी बिकम एडिक्टेड टू ग्लूटेन. दैट्स द रीजन व्हेन यू आस्क पीपल ब्रेड मत खाओ, रोटी मत खाओ, ग्लूटेन इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डाइजेस्ट, वो नहीं छोड़ पाते हैं. 2-3 दिन बाद सुनेंगे थर्ड फोर्थ डे दे हैव अ क्रेविंग ऑफ ब्रेड्स एंड रोटीज. तो छोड़ ही नहीं सकते बिकॉज आपका ओपियोइड रिसेप्टर ने इतना एडिक्ट हो चुका है कि 2 दिन आप शायद राइस ले लो या आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि इफ यू कैन नॉट लिव विदाउट रोटी, स्विच टू मिलेट्स, कुट्टू का आटा, ओट्स रोटी बना के खाओ, राजगिरे की रोटी बना के खाओ. वो नहीं खाते, कहते हैं हमें टेस्ट ही नहीं लगता है, टेस्ट नहीं आता है. सो बेसिकली कोई भी वेजिटेबल्स, एनी ग्रेवी, आई फील इट्स अ कंप्लीट फूड. यू डोंट नीड एनीथिंग एडिशनल के राइस के साथ ही खाना है या रोटी के साथ ही खाना. इट्स कंप्लीट मील. इट हैज ऑल दिस प्रोटीन, फैट्स, vitamins, minerals and आपका कार्ब्स, एवरीथिंग इज देयर. दाल में सब है, चिकन का ग्रेवी में है, कोई सब्जी में भी है. बट वी आर सो एडिक्टिव ऑफ दिस ग्लूटेन दैट वी नीड रोटी. बिना रोटी के ऐसा लगता है खाना अधूरा है. अब क्या है, as I told you now, your small intestine absorb all your nutrients, your vitamins, minerals, which are hard to digest. ठीक है ना? या ऐसे फूड पार्टिकल्स which are again hard to digest. तो वो इंटेस्टाइन में क्या होता है, वो जिसको हम गट भी बोलते हैं. योर इंटेस्टाइन इज ऑल्सो नोन एज गट. देन इट गोज स्ट्रेट अवे वेयर, इन योर ब्लड. अब आप ध्यान से सुनना या आप चाहे लिख लेना. हमारे इम्यून सिस्टम को आदत है ऑलरेडी डाइजेस्टिव चीज को लेने की. माउथ से स्टमक में गया, स्टमक का काम ही यही है, एसिड है, पैप्सिन निकला, एसिड निकला, फूड डाइजेस्ट किया, उसने आगे इंटेस्टाइन में भेजा. अब एक वो इतना बड़ा पार्टिकल आ रहा है ग्लूटेन का, या कोई ऐसे अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स आ रहे हैं, इम्यून सिस्टम को समझ में नहीं आता क्या करना है, बिकॉज उसे तो आदत है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स देखने की. Now your immune system start to do autoimmunity attack. It is because you have a gluten or any other food sensitivity. क्या होता है कि जो पार्टिकल आया है, it takes the shape of any organs. Let's say उसने पैनक्रियास का शेप ले लिया. आपका इम्यून सिस्टम को कुछ नहीं पता, आपका इम्यून सिस्टम पैनक्रिया पे अटैक करता है. हम कहते हैं ऑटोइम्यून टाइप 1 डायबिटीज हो गया. अगर उसने थायराइड को रिजेंबल किया या थायराइड ग्लैंड पे उसने अटैक किया, we say I have sluggish thyroid or my thyroid cell are dying. जो women जिन्हें ये autoimmunity disorder है, if she wants to conceive baby, बहुत important है for those females to correct your autoimmunity first, because your immune system is already aggressive. It will give this foreign particles to your baby, और वो आपकी बेबी के भी इम्यून सिस्टम में चला जाएगा, एंड इट विल मेक योर बेबीज इम्यूनिटी डिसऑर्डर. सो दिस इज द मेन रीजन फॉर योर लीकी गट. क्या आपको जो लीकी गट है, दैट इज द मेन रीजन, द फर्स्ट रीजन दैट आपका इंटेस्टाइन बड़ा पार्टिकल डाइजेस्ट कर ही नहीं रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिम्टम ऑफ लीकी गट. क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं जिससे मैं समझ सकूं, आप समझ सके कि मुझे भी लीकी गट है. सबसे पहले माल न्यूट्रिशन होना शुरू हो जाता है ना. व्हाट इज माल न्यूट्रिशन क्या है और ये क्या होता है? लाइक यू हैव ग्रे हेयर्स. 25-30 की एज में गर्ल्स दे कंप्लेन दैट वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ ग्रे हेयर्स. बच्चों के व्हाइट बाल्स होने शुरू हो जाते हैं. अब बच्चों को मल्टीविटामिन्स भी देते हैं, उनको असर नहीं पड़ रहा, बट आई विल ऑलवेज से कि गिव योर किड्स मल्टीविटामिन्स, वेरी नेसेसरी. माल न्यूट्रिशन क्या होता है? अब बहुत अच्छा खा रहे हो, बहुत अच्छा, लोग कहते हैं आई एम फिटनेस फ्रीक, आई ईट सैलेड्स, आई ईट दिस, आई ईट दैट, मैं एमसीटी ऑयल भी ले रही हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ, ये विटामिन्स मिनरल्स भी ले रहे हैं. अब सब कुछ अपनी डाइट का देख रहे हैं, लेकिन आपके सिस्टम कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर रहा. आपका सिस्टम सिंपली उसे बाहर फेंक रहा है. दैट मीन्स यू आर सिंपली स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन योर विटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स. यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन गुड फूड, जिसे आप कह रहे हैं कि मैं अच्छी से खा रही हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ योर लीकी गट एवरीथिंग इज गोइंग आउट फ्रॉम योर सिस्टम. लिटरली योर सिस्टम इज थ्रोइंग आउट फ्रॉम द कॉलन से बाहर जा रहा है. योर ब्लड इज नॉट रीचिंग इन टू द नेल्स. आप जितने भी प्रोटीन खाते हो, आपकी स्किन बेटर नहीं हो रही, आपके नेल्स बेटर नहीं हो रहे हैं.
you have a leaky gut. Under eye puffiness, water retention होता है, सुबह उठते हो आप जब, so have you seen yourself in the mirror? ये सूज गया होता है, यहाँ से ऐसा सूजा सूजा होता है, it is a sign of malnutrition. Skin झुलस सी रही है, it is a sign of malnutrition. बच्चों में अगर malnutrition के साइन होंगे तो उनके कभी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी. लीकी गट की वजह से हमारी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा वीक हो जाती है, इतनी ज्यादा वीक हो जाती है कि वो लड़ने के लिए ही कैपेबल नहीं होती है. सो हमें बहुत सारे डिजीजेस होने लग जाती है. इनफैक्ट हम फीमेल को जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, दैट आल्सो स्टार्ट फ्रॉम लीकी गट. एंड एज आई वांट टू फोकस ऑन दिस डाइजेस्टिव सिस्टम, मैं वाकई सर्वरी एक वेबिनार हम रखेंगे whenever you are, especially for the hormonal imbalance, because lot of female nowadays they are going through with so many hormonal imbalance, body shaming, their hormones are changes, they are getting acne, their hirsutism, abruptly weight gain हो ही रहा है, एक्सरसाइज करने के बाद भी वेट कंट्रोल में नहीं आ रहा है, डाइट कंट्रोल करने के बाद भी वेट कंट्रोल में नहीं आ रहा है. सो वी विल डू दैट. और हाउ इट इज रिलेटेड विथ योर गट हेल्थ, वो भी हम उस पर बात करेंगे. खाना खाते से ही ब्लोटिंग हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया बहुत ज्यादा, दैट मीन्स यू आर ईटिंग टू मेनी स्टार्च. सो व्हाट आर द थिंग्स दैट डिस्ट्रॉय योर दिस प्रोटेक्टिव लेयर, जिसकी वजह से लीकी गट हो जाता है? योर एंटीबायोटिक्स. अब बहुत टाइम्स एंटीबायोटिक्स पे रहते थे. आई एम ऑल्सो द पर्सन, मुझे बहुत यूटीआई का प्रॉब्लम हो जाता था पहले, जब मुझे इतना आइडिया नहीं था. बहुत आए दिन मुझे यूटीआई का प्रॉब्लम हो जाता था. मे बी मेरा गट लीकी गट होगा, या मुझे उस समय नॉलेज नहीं था. एंड आई यूज्ड टू टेक मेटामॉर्फिन, या बहुत सारे डॉक्टर्स मुझे एंटीबायोटिक्स लिख देते थे. सो डाइजेशन इशू, ब्लोटिंग इशू, बहुत सारे इशू थे. आप बहुत स्ट्रेस में रहते हो, इन्फ्लेमेशन है बिकॉज ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आप ले रहे हैं, एस्प्रिन, इबोफेम, स्टीरॉइड्स किसी भी टाइप के, एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर यू आर ईटिंग. आपको पता है an average person on a daily basis eats 29 to 31 spoons of sugar per day. अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो 2 बार चाय पीती हूँ, एक बार सुबह एक बार शाम को, 2 चम्मच ही. कोई कहता है हम तो पीते ही नहीं है शुगर, हम तो फीकी चाय पीते हैं. कोई कहता है आई यूज स्टीविया, आई ऑलवेज पुट स्टीविया इन माय चाय कॉफी. लेकिन फिर भी एक एवरेज पर्सन इतनी सारी शुगर खाता है, कैसे? द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट वी ईट, ये हमारे सिस्टम में जाके इट कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन इज इक्वल टू ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब शुगर. सो दिस इज एन एवरेज पर्सन. एक बहुत कम बता रही हूँ, जिस दिन आपने फीस्ट करी, बाहर जाके पिज्जा, बर्गर, ये वो सारा खाया, फिर तो दैट क्रॉस 50 स्पून. जस्ट इमेजिन अगर आप इतना स्पून ऑफ शुगर इन जनरल खाते हो. ये तो मैंने आपको बताया कि विथ योर कार्ब्स इट्स गोइंग इन योर सिस्टम. इफ यू आर ईटिंग दिस स्पून, जो आपका शुगर का बॉक्स है उसमें से निकाल के खा रहे हो, तो आप इमेजिन करो कि आपके सिस्टम की क्या हालत होगी. सो इन सब से धीरे 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 योर मेडिसिन, योर एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर, योर एंटीबायोटिक्स, योर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, और ये सारी चीजें धीरे धीरे आपकी प्रोटेक्टिव लेयर गट बैक्टीरिया की है उसको खत्म कर देती है. अब क्या होता है, ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का हम इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं कि इम्यूनिटी कैसे अटैक करती है. There are many people who are suffering from this thing, या हम इसको एक सिंपल से लैंग्वेज में कह सकते हैं. आप लोगों ने सुना होगा इट्स वर्ड विच इज नोन एज SIBO. It's very common nowadays. Every 1% out of 3 is having SIBO. So what is SIBO? SIBO is a small intestine bacterial overgrowth. हर किसी को हो जाता है, many people. जिनको भी आईबीएस की प्रॉब्लम है, आईबीएस का मतलब क्या हुआ, कभी डायरिया हो गया, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया, कभी वॉमिटिंग हो रही है, कभी एसिडिटी हो रही है, कभी बर्निंग हो रहा है, इस टाइप से डाइजेशन के बहुत सारे इशू हो रहे हैं, इसको आईबीएस कहते हैं. और जिन्हें भी ये प्रॉब्लम होती है, खाना खा के फटीग फील हुआ, एकदम एसिडिटी बढ़नी शुरू हो गई, बर्निंग सेंसेशन फील होने लग गया, उन्हें SIBO है ही है. 120% दे है SIBO. लोग कहते हैं मैं खाना खाती हूँ मेरा पेट खराब हो जाता है. क्यों खराब हो जाता है? खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, सारा खाना नीचे चला जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से में ना डाइजेस्ट होकर वो चला जाता है आपके कोलोन में, आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. जो हमारा सिस्टम होता है उसमें हाईएस्ट
बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया, वो सारी कॉलोनी इज इन योर कोलन, जो आपके इंटेस्टाइन के नीचे है, ठीक है ना। सो आइडियल सिस्टम क्या होना चाहिए कि सबसे ज्यादा गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी आपकी कहाँ होनी चाहिए, कोलोन में, और सबसे कम बैक्टीरिया कहाँ होना चाहिए, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, बिकॉज योर स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड। टेनिस कोर्ट जितनी लंबी है, उसको ऐसे फोल्ड करके ईश्वर ने हमारे पेट में डाल दिया है, जब आप उसको खोलोगे तो इट्स टेनिस कोर्ट जितना लंबा। यहाँ पे आपके सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होते हैं, यहाँ पे कोई पंगा नहीं चाहिए। आपकी लाइफस्टाइल जो है पंगा कर देती है, सब कुछ मैस कर देती है, जो आप खा रहे हो, जिस तरह की लाइफस्टाइल जी रहे हो आप, सब कुछ इस स्मॉल इंटेस्टाइन में मैस हो जाता है। क्या होता है, वैसे भी क्या है कि आजकल जो प्लांट्स है या आपकी जो फूड सोर्सेस है, उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज्यादा कम हो गए। इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, और जो इस तरीके से कल्टीवेशन हो रहा है, जो प्रोडक्ट्स दे यूजिंग, वैसे ही हमारे न्यूट्रिएंट्स इतने कम है, तो इंटेस्टाइन को अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते ही नहीं है ऑब्जर्व करने के लिए। उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल उसको पूरी तरह से जो है खत्म कर देता है। अब लेट्स से कि आपने कोई B12 रिच फूड खाया, B12 रिच फूड मीन्स एग ले लेते हैं, आपने एग खाया, आपने फुल एग खाया विथ योक, जो कि बहुत डेंस है न्यूट्रिशन में, वो आपकी सारी चीज स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो रही है। अब क्या हुआ कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है वो खराब हो गई है। सो क्या हो जाएगा, वो वहां डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो क्या हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन से आपके कोलोन में आ गया, वहां पे बैक्टीरिया ओवरग्रोथ करने लगे। एज आई टोल्ड यू कि बैक्टीरिया उसमें गुड कॉलोनी है, कॉलोन में बैक्टीरिया की गुड एंड बैड बैड दोनों कॉलोनी है, तो वहां पे वो ओवरग्रोथ होने लगा। अब कॉलोन में क्या हुआ, हमने ज्यादा स्टार्ची फूड खाना शुरू किया, हमारा लीकी गट हो गया, वो खाना कॉलोन तक पहुंच गया, बिकॉज इंटेस्टाइन में स्टमक ने नहीं डाइजेस्ट किया, इंटेस्टाइन से बाहर हो गया। कई बार आप ये भी देखते हो कि आपकी जो पूप है उसमें अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आते हैं, वो इतने गंदे फूड पार्टिकल्स है कि जो आपकी कॉलोन की हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ बैक्टीरिया है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आपने कभी देखा है कि आप खाना खाते हो, उसके बाद इमीडिएटली ब्लोटिंग हो जाती है, ब्लोटिंग होने के बाद फार्टिंग शुरू हो जाती है। फार्टिंग कहाँ से होती है, वहीं से होती है जहां से आपका पूप निकलता है। सो आपकी कॉलोनी डिस्ट्रॉय हो गई, दैट मीन्स आपके कोलोन के बैक्टीरियाज बता रहे हैं कि ऊपर से जो फूड डाइजेस्ट होना था वो नहीं हुआ, वो माउथ से पास हुआ, स्टमक से पास होते होते, स्टमक का मतलब जो एसिड था वो बहुत गंदा वाला, जो स्ट्रॉन्ग एसिड, वो भी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाया, वो इंटेस्टाइन को भी क्रॉस करके सीधा कॉलोन में आके बैठ गया है। सो आपकी फार्टिंग हो रही है। सो जो कोलोन के बैक्टीरिया है वो आपको चीख चीख के बोल रहे हैं कि प्लीज ये इतना गंदा खाना मत खाओ, छोड़ दो ये गंदा खाना, ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा, ये जो ईश्वर का बनाया है इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा, ये खाना छोड़ दो, इस खाने को खाना। अब होता क्या है कि जो कोलोन में हमारी बैक्टीरियल कॉलोनी होती है, वो वेट कर रही होती है गुड बैक्टीरिया के, ज्यादा से ज्यादा गुड बैक्टीरिया की उगने की, पर होता क्या है, बैड बैक्टीरियाज हो गए। कई बार बैड बैक्टीरियाज, क्योंकि खाना वहां तक नहीं पहुंच रहा है, इतने ज्यादा उग जाते हैं कि वो इंटेस्टाइन तक आ जाते हैं। गंदा खाना है, डाइजेस्ट नहीं हुआ, गुड बैक्टीरियाज मर गए, बैड बैक्टीरियाज वहां पे बन रहे हैं, वो आपके सीधे इंटेस्टाइन तक आ जाते हैं। वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ पहुंच जाते हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचता है जहां पे न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन होना चाहिए था, सो वहां पे जब खाना पहुंचा, आपका सिस्टम खराब हुआ। आपको पता है फैट और प्रोटीन सब कुछ एनर्जी के लिए, आपको एनर्जी देता है आपका फैट, आपका प्रोटीन, आपका अमीनो एसिड। बट जो आपकी न्यूट्रिएंट्स का ऑब्जर्प्शन होता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब वहां तक खाना पहुंच जाता है, आपको सीबो के स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ के सिम्टम्स होने लग जाते हैं। मैंने क्या कहा, कोलोन में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है, मोर देन 60% बैक्टीरिया आपके गुड बैक्टीरिया आपके कोलोन में होते हैं, और सबसे कम आइडियल सिस्टम में सबसे कम स्मॉल इंटेस्टाइन में होना चाहिए। अब वो ओवरग्रोथ हो गया क्योंकि खाना
कॉलन से लार्ज इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन ने स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया, वहां खाना सड़ रहा है, तो गंदे बैक्टीरियाज जो होते हैं, बैड बैक्टीरियाज, उसकी ओवरग्रोथ हो जाती है, इसलिए हम इसे कहते हैं सीबो। वेरी सिंपल है। जिनको भी सीबो होता है उन्हें सबसे ज्यादा, प्लीज राइट इट डाउन, जिन्हें भी ये प्रॉब्लम से या ये सिम्टम्स होती है खाना खाने के बाद, उनको फैट सोल्यूबल वाइटामिन, जो कि अब होता है आपको विटामिन ए, डी, ई, के, इनकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। आयरन की भी कमी हो जाती है, आयरन की प्रॉब्लम भी आती है। और जिनको फैट सोल्यूबल विटामिन की प्रॉब्लम होती है, उन्हें आने वाले टाइम में इन ए, डी, ई, के की डेफिशिएंसी हो जाती है। इससे आपका ये जो ए, डी, ई, के है विटामिन ग्रुप, इसी से बनता है आपका इम्यून सिस्टम, इसी से बनती है आपकी बोन, इसी से बनता है आपका नर्वस सिस्टम। अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई, आपका नर्व डैमेज हो जाता है, पैरालिसिस का अटैक आता है आपको। आपकी जब बैक्टीरियल कॉलोनी मर जाती है, आपको इन सब चीजों की डेफिशिएंसी हो जाती है, आपको इनमें से इम्यूनिटी, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डिजीजेस होती है, वो होने लग जाती है। शायद ये रीजन रहा होगा कि किसी को आप देखते हो कि उन्हें पैरालिसिस हो गया, या बहुत टाइम से उन्हें पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, मे बी उनका गट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया होगा, लीकी गट होगा उनको, उनकी बैक्टीरियल कॉलोनी मर गई है वहां पे इंटेस्टाइन में, so दैट इज द रीजन उनका नर्व्स पे अटैक हुआ है। Let's talk about how to treat small intestine bacterial overgrowth naturally. रिसर्चर्स का कहना है कि जितने भी लोग आईबीएस के सिम्टम हैं, उनमें से मोर देन 70% लोगों को सीबो की प्रॉब्लम है। देखो, डॉक्टर ने इस नाम को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्होंने कॉम्प्लिकेट कर दिया। कुछ भी नहीं है, गंदे बैक्टीरिया कोलोन से ग्रो होके आपके लार्ज इंटेस्टाइन से पास होके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चले गए और वहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। बस इतना आपको समझना है। अब जिनको भी सीबो है, अगर वो ऐसे फूड आइटम खाएंगे जो डाइजेशन में प्रॉब्लम करते हैं, उनको उसी टाइम पे रैशेस हो जाएंगे, एक्साइमा निकल जाएगा, खाने के बाद ब्लोटिंग, डायरिया, जॉइंट पेन, फटीग, एस्थमा, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट, या भूख नहीं लगती है, या थोड़ा खाने पे ही पेट भर जाता है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं मैम मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है, क्या करना चाहिए? तो मैं कहती हूँ इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। ज्यादा खाओ, अच्छा खाओ, अपनी बॉडी के सेल्स को टर्न ओवर करो, और आपकी जो बॉडी की सेल्स ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कचरे से बने पड़े हैं, उसको हटाओ, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन दो। अपनी हर मील में प्रोटीन खाओ, हर 3 घंटे के बाद प्रोटीन खाओ, हर 3 घंटे के बाद फैट एंड प्रोटीन खाओ। आपके हर सेल का मेम्ब्रेन्स जो होता है, वो बना होता है फैट से। जब आप ज्यादा से ज्यादा फैट एंड प्रोटीन खाएंगे, आपकी बॉडी धीरे धीरे चेंज होने लगेगी। लोग खुद कहने लगेंगे क्या बात है, पतली हो गई, यू आर लुकिंग गुड, योर स्किन इज शाइनिंग, योर हेयर, आपके हेयर्स बोलेंगे, नेल्स बोलेंगे। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, एक फीमेल आई थी मेरे पास, शी इज 55 years old। वो कुछ भी खा रही थी, एनीथिंग प्लांट बेस्ड प्रोटीन, एनिमल बेस्ड प्रोटीन, कुछ भी, एनीथिंग। उसको इतना ज्यादा ब्लोटिंग था, इतना ज्यादा ब्लोटिंग था, कोई भी चीज ऑब्जर्व नहीं हो रही थी बॉडी। मैंने उसको एमसीटी ऑयल पे डाल दिया। मैंने कहा आपको एवरी 3 आवर्स में 1 स्पून एमसीटी ऑयल खाना है दिन भर में। सो उसने 24 आवर्स, जितनी देर वो जग रही थी, उसमें एवरी 3 आवर्स में वो 1 स्पून एमसीटी ऑयल खाती थी। उसका सीबो तो काफी हद तक ठीक हुआ, प्लस साथ में शी लॉस्ट 12 मोर देन 12 kgs ऑफ वेट इन आई थिंक 2.5 months टाइम। सो अगर आप लोगों को भी इनमें से कोई सीबो की प्रॉब्लम है या सीबो के सिम्टम्स दिखते हैं, तो प्लीज स्टार्ट विद एमसीटी ऑयल। अगर खाना खाने के 2-3 घंटे बाद रैशेस, एक्जिमा, ब्लोटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट, जॉइंट पेन, फटीग, एस्टमा, दैट मीन्स आप भी सीबो के पेशेंट है। और सीबो के पेशेंट को सबसे हाईएस्ट डेफिशिएंसी रहती है विटामिन B12 की। According to Harvard Medical School, symptom of B12 deficiency can appear gradually. धीरे 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 दिखती है आपको, एकदम से नहीं दिखेगी। अब क्या डेफिशिएंसी होती है? नमनेस एंड टिंगलिंग इन एक्सट्रीमिटीज, ये यहाँ पे है ना, वो चीटियां दौड़ती है, हाथ सुन हो जाता है, ये नमनेस एंड टिंगलिंग होती है। एनीमिक हो जाते हैं आप, एनीमिया हो जाता है,
आपको जॉन्डिस हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जॉन्डिस हो जाता है, उनको हाई डेफिशिएंसी है B12 की। B12 के इंजेक्शंस लगाओ। डिक्लाइन इन कॉग्निटिव फंक्शन, ये हो सकता है या ये बिल्कुल हो जाता है। व्हाट इज कॉग्निटिव फंक्शन? मेमोरी लॉस। मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज आपको समझ में ही नहीं आती। मतलब आज जो ये वेबिनार देखेंगे उनको आज का वेबिनार भी समझ में नहीं आ रहा होगा। दैट मीन्स आपको हाईएस्ट डेफिशिएंसी है B12 की। मेमोरी लॉस, फटीग, वीकनेस, ये सारे सिम्टम्स है आपको। अब बात करते हैं कि हम सीबो को कैसे एलिमिनेट करें। बहुत सारे रिसर्चर्स या बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं टेस्ट कराओ, आप खुद भी टेस्ट कराने जाते होंगे। क्या होता है, हमारे स्टमक के अंदर एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है, वहां से सीबो का टेस्ट होता है। अब डॉक्टर करवाते हो, आपको सीबो निकला, ठीक है ना, आपने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई, डॉक्टर ने आपको फिर एंटीबायोटिक्स पे डाल दिया। वो एंटीबायोटिक्स देगा, बिकॉज बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक्स तो देना ही पड़ेगा, उसके बिना काम ही नहीं होगा। अब होगा क्या, एंटीबायोटिक्स दी, उसने गुड बैक्टीरिया मार दिए, सीबो फिर आ गया। मतलब सीबो का क्या है, कॉलन से फिर ऊपर आ जाएगा। तो कोई फायदा नहीं है एंटीबायोटिक्स खाने का, क्योंकि वो तो आपकी जो कॉलोनी है बैक्टीरिया की वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब हम लोगों को क्या करना है कि हमें सीबो ना हो, या जिन्हें सीबो हो उन्हें नेचुरली कैसे वो ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उन फूड एलर्जीज को एड्रेस करना है। जो भी आप खाना खाते हैं, आप देखिए कि उनमें से कोई खाना आपको एड्रेस तो नहीं करता। मेरी नजर में 6 खाने ऐसे हैं जो किसी ना किसी को फूड एलर्जी, मतलब हम सबको ही फूड एलर्जी देते हैं। हो सकता है उसमें से कोई 2 मुझे देता हो, 1 आपको देता हो, 4 किसी और को देता हो। ग्लूटेन, सोए, डेयरी, पीनट, कॉर्न एंड एग्स, ये सबसे ज्यादा 6 चीजें हैं जो लोगों को प्रॉब्लम करती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो अपना IgG टेस्ट कराते हैं, जो फूड सेंसिटिविटी कराने के लिए एक टेस्ट होता है विच इज नोन एज IgG सेट। डॉक्टर्स इतनी अननेसेसरली निडल्स लगाते हैं, बॉडी को इतने ट्रॉमा में डाल देते हैं IgG टेस्ट करने के लिए। व्हाट इज माय वे ऑफ ट्रीटिंग सीबो? एलिमिनेशन डाइट। आप एक एक करके फूड ग्रुप्स को छोड़ के देखो। जैसे ग्लूटेन मत खाओ, 10 दिन तक ग्लूटेन मत खाओ, 11वां दिन खा के देखो। अगर ग्लूटेन खाने से आपको फार्टिंग होती है, डाइजेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, दैट मीन्स दिस फूड ग्रुप इज गिविंग यू प्रॉब्लम। एग्स छोड़ दो, कुछ दिन एग्स मत खाओ। मेरी क्लाइंट थी, उसको एग से बहुत प्रॉब्लम थी, दो आई राइट सो मच ऑफ एग्स ऑन माय डाइट एंड ऑल दैट, आई आल्सो टेक, बट उसको प्रॉब्लम थी। हो सकता है आप में से किसी को प्रॉब्लम हो। ऑल्दो एग्स में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, इट्स अ कंप्लीट प्रोटीन प्रोफाइल, मोस्ट हाईएस्ट बायो अवेलेबल फॉर्म ऑफ प्रोटीन, लेकिन एग्स खाते से ही फाट शुरू हो जाती है, ब्लोट होना शुरू हो जाता है, हैवीनेस लगता है। एलिमिनेट करके देखो अपने डाइट से, आपको खुद चेक करना है। आपको ये देखना है कि कौन सा फूड ग्रुप आपको फायदा दे रहा है या कोई सब प्रॉब्लम कर रहा है। सो या फिर जिन्हें एग खाने होते हैं, लाइक आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स जो कि जिम में ट्रेनिंग करते हैं, वो कहते हैं नहीं हमें खाना है ये प्रोटीन भी, हम इतना चिकन या मटन नहीं खा सकते, वी हैव टू ईट। सो आई ऑलवेज से कि एप्पल साइडर विनेगर लो एग खाने से पहले, सो दैट आपका पेट का एसिड अच्छा है। एंड व्हाट इज एप्पल साइडर विनेगर? इट्स एसिड, एसिड ही है। तो हमारे पेट में जो एसिड और पेप्सिन निकल रही है वो जब खराब हो जाता है, वो बिल्कुल तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो एप्पल साइडर विनेगर उसकी क्वालिटी को एनहांस करता है, इंप्रूव करता है। इससे खाना खाने से पहले या एग्स खाने से पहले, चना खाने से पहले, चने से बनी कोई भी चीज खाने से पहले हैव एप्पल साइडर विनेगर इन वार्म वाटर। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो टेक बीटा NaCl विद पेप्सिन, अगर कहीं मिल जाए तो टेक दैट। कुछ लोगों को पीनट्स से बहुत एलर्जी होती है। पीनट्स की प्रॉब्लम क्या है कि 98% टाइम्स उसके अंदर मॉइस्चर होता है। पीनट में ये कैपेबिलिटी है कि वो मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेता है, और जो भी चीज मॉइस्चर ऑब्जर्व करता है उस पे ग्रो होते हैं अल्फा टॉक्सिन। किसी पे भी आप देखना, आप अपनी दीवारों को देखो, ज्यादा मॉइस्चर है वहां पे जो है ना यीस्ट शुरू हो जाता है, फंगल लगना शुरू हो जाता है। तो इसकी ये प्रॉब्लम है, इसमें अल्फा टॉक्सिन आने लग जाता है, तो आपको डाइजेशन का इश्यू होगा। क्योंकि आप अगर फंगी खा रहे हो, आप जो है ऐसी चीजें खा रहे हो जो टॉक्सिन ऑलरेडी टॉक्सिक है और वो अंदर जाके टॉक्सिन क्रिएट कर रहा है, तो यू विल हैव अ डाइजेशन इशू। डेयरी छोड़ो, ग्लूटेन छोड़ो, कॉर्न छोड़ो, सोया छोड़ो, इन सब से फूड एलर्जी होती है। छोड़ के देखिए ग्रुप, आप देखिए आपको ठीक लग रहा है,
एक हफ्ता छोड़ो, 10 दिन छोड़ो, फिर स्टार्ट करो। क्या आपकी बॉडी, आपको खुद को समझ में आएगा कौन सा फूड ग्रुप मुझे प्रॉब्लम दे रहा है। ग्लूटेन, सॉरी, डेयरी, डेयरी में भी क्या है, आप डेयरी जाके देखिए, पूरा हार्मोन से सारे जो कैटल फार्म है उन्हें, कैटल्स को रेस किया जाता है। जिस कैटल की कैपेसिटी 4 लीटर, 3.5 लीटर टू 4 लीटर का मिल्क देना है, उससे मोर देन 20 लीटर्स मिल्क वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। दे गिव देम ग्रोथ इंजेक्शन, हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाते हैं, तो जो उनका थन होता है वो इतना बड़ा हो चुका था। किसी भी कैटल को देखना आप, तो आप गाय को देखिए, भैंस को देखिए, तो क्या होता है, आप वो हार्मोन्स, जो ग्रोथ हार्मोन्स है, वो जाते हैं दूध के थ्रू आपकी बॉडी में, और आपकी बॉडी में हो जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो एक बार डेयरी अवॉइड करके देखो, शायद आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो, खाली एक वो की नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम खाली डेयरी छोड़ने से ठीक हो जाती है। इनफैक्ट आपका पीसीओडी, पीसीओएस तक करेक्ट हो जाता है अगर आप डेयरी छोड़ते हैं। आप जाके आईजीजी टेस्ट भी करा सकते हो, ऐसा नहीं है। आईजीजी टेस्ट में एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कौन सा फूड है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है। यू आर ग्लूटेन इनसेंसिटिव, आप लैक्टोज इंटॉलरेंस हो या लैक्टोज सेंसिटिव हो, या आपको एग से प्रॉब्लम आ रहा है, चिकन से भी प्रॉब्लम होता है किसी को। सो बट वो आईजीजी टेस्ट में क्या होता है, बहुत सारा आपको कुछ नहीं होता। क्या है आईजीजी टेस्ट, क्या है, ये एंटीबॉडीज है जो एलिवेट हो जाती है इन रिस्पॉन्स टू वॉट एवर यू ईट। जिन फूड ग्रुप से आपको फूड सेंसिटिविटी हो जाती है वो एलिवेट हो गए। सो बस, या आईजीसी टेस्ट अगर नहीं कराना चाहते हो, बहुत सारा पैसा भी लगता है और बहुत नीडल्स लगते हैं, बहुत नीडल्स इसमें, ऑलवेज डू एलिमिनेशन डाइट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इन 6 में से आपको जिस भी फूड ग्रुप से प्रॉब्लम है उसको इमीडिएटली रोको। क्यों रोको, आपका इम्यून सिस्टम अटैक होगा, पैनक्रियास पे अटैक हो सकता है, आपको थायराइड हो सकता है, आपकी म्यूकस लेयर खराब हो सकती है, आपके बालों पे अटैक हो सकता है, आपकी स्किन पे अटैक हो सकता है। पहले आपको यही करना है। अगर आपको डाइजेशन की कोई भी प्रॉब्लम है, एलिमिनेशन डाइट की स्टार्ट करो। उसके बाद सोचना पतला होना है नहीं होना है, स्टार्ट विद द एलिमिनेशन डाइट। दूसरी चीज, स्टार्ची फूड कम खाना है। मैंने आपको समझाया था कि डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होता है ना, दिस इज अवर फूड पाइप। यहाँ से होता है पेट में, यहाँ डाइजेशन होता है एमसीटी का, फिर उसके नीचे वो पेट में प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। स्टार्च तो बिल्कुल नीचे जाके डाइजेस्ट होता है, और बॉडी को स्टार्च डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर सकते स्टार्च या स्टार्ची फूड। सो ब्रेड, सीरियल्स, शुगरी फूड्स, इन सबको आप एलिमिनेट करो। यहाँ तक कि जो नाइट शेड्स फूड होते हैं, व्हाट इज नाइट शेड फूड्स, उसमें एक तरीके का एंजाइम पाया जाता है, आप एलिमिनेट करो। जैसे आपका टमाटर है, आपके बेल पेपर्स वगैरह जो होते हैं, देन योर ब्रिंजल है, इन सबको नाइट शेड फूड कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा गोभी खाओ, ब्रोकली खाओ, अवोकाडो खाओ, इन सबको आप अपने डाइट में शामिल करो। आप थोड़ा सा फाइबर भी हमें बहुत ज्यादा नहीं खाना है, लेकिन फाइबर वो खाना है जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। जैसे आप चिया सीड्स खा सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं, ये सारी चीजें आप खाते हो, आपका गट अच्छा होता है इससे। उसके बाद वो फूड खाओ जो आराम से डाइजेस्ट होता है, जैसे एमसीटी ऑयल, कोकोनट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, बिल्कुल 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 नहीं खाना। स्टॉप कुकिंग फूड, स्टॉप गिविंग कोकोनट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, सीड्स ऑयल, ये सब आप अपने बच्चों को देना बंद करिए। खाना बनाओ कोकोनट ऑयल में, खाना बनाओ घी में। उसके बाद आपको गट हीलिंग न्यूट्रिएंट्स लेना है। व्हाट आर द गट हीलिंग न्यूट्रिएंट्स? विटामिन ए, जिंक, एक इवनिंग प्राइम रोज ऑयल आता है, स्टार्ट टेकिंग दैट, दैट इज वेरी वंडरफुल ऑयल। वो आपकी गट की जो न्यूट्रिएंट्स है उसको हील करेगा, आप गट हील करेगा। ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन इज अगेन वेरी वंडरफुल। अब कैसे लेना है ग्लूटामाइन? आप या तो बोन ब्रोथ बना के ले सकते हैं, बोन्स जो आती है एनिमल की बोन्स, उसको आप स्लो कुकिंग करिए एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स, उसका ब्रोथ पी सकते हैं। यू कैन टेक पाउडर, ग्लूटामाइन पाउडर फॉर्म में आता है, यू कैन इजीली अवेलेबल, आप किसी भी सप्लीमेंट शॉप पे आपको मिल जाएगा। यू कैन मिक्स इट विथ योर प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन, वे प्रोटीन, एनी प्लांट बेस्ड प्रोटीन के साथ आप इसको मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद आपको मील्स के साथ मैंडेटरी एप्पल साइडर विनेगर या बीटेन एससीएल लेना है, इस पेप्सिन के साथ अवेलेबल है। तो प्रोटीन आपकी प्रॉब्लम है, प्रोटीन डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है स्टमक को, इसलिए आपको ये विनेगर लेना ही लेना है। कई बार लोग चिकन खाते हैं और चिकन खाते से या कोई भी तरह का नॉनवेज का सोर्स खाते हैं, उनको ईचिंग शुरू हो जाती है।
हाई प्रोटीन फूड खाते ही खुजली खुजली से ऐसा लगता है कि स्किन पे से खुजली खुजली हो रही है, ऐसे लोगों का भी गट डिस्ट्रॉय है। या कोई फर्मेंटेड फूड खाने से उनको प्रॉब्लम होती है। अब ध्यान रखना है आपको कि आपको सीबो का इशू है, आपको डाइजेस्टिव इशू है, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम है, आपको कभी भी प्रोबायोटिक फूड नहीं लेना है, ना प्रोबायोटिक कैप्सूल्स लेना है, ना आपको प्रोबायोटिक पाउडर स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोबायोटिक फूड खाते हैं, कोई फर्मेंटेड फूड खाते हैं, आप कोई प्रोबायोटिक पाउडर लेते हैं, आपको फिर से एजिंग शुरू हो जाएगी। आपको स्टार्ट करना है प्रीबायोटिक से। अगर आप प्रोबायोटिक लेते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो नेचुरल फॉर्म में कोई फर्मेंटेड फूड से लेते हैं या आप उसको कोई सप्लीमेंट के थ्रू लेते हैं, तो जो ऑलरेडी पेट के अंदर आपके बैक्टीरिया है वो ओवरग्रो होने शुरू हो जाएंगे। आपको सिर्फ प्रीबायोटिक से स्टार्ट करना है, प्रीबायोटिक लेना है। आप नेचुरली भी ले सकते हैं, बट अगर आपको वो फूड आइटम भी प्रॉब्लम करती है तब आपको प्रीबायोटिक का सप्लीमेंट लेना ही लेना होगा। सप्लीमेंट लेने के बाद धीरे धीरे आप नेचुरल फूड्स पे आ सकते हैं। और जिस भी कंपनी का सप्लीमेंट लेंगे आप लिख लीजिए, ये जरूरी है देखना कि 25 to 50 बिलियन CFU लेना है आपको प्रीबायोटिक। इतना ज्यादा प्रीबायोटिक लेना पड़ेगा आपको अगर आपकी गट हेल्थ खराब है। 25 to 50 बिलियन CFU इतना प्रीबायोटिक का आपको चाहिए। जैसे जैसे आपका सीबो खत्म होता है आप नेचुरल फूड ग्रुप्स पे आ सकते हैं प्रीबायोटिक पे। आप यू कैन स्टार्ट विद दही। अगर बकरी का दही मिल जाता है तो सबसे बेस्ट, गोट मिल्क से बना हुआ कहीं मिल जाए तो दैट इज द वंडरफुल थिंग। जिनको सीबो का इशू है और धीरे धीरे खत्म होता है, सीबो नहीं आएगा वापस। फिर उसके उसके बाद एक रेंडमाइज ट्रायल में देखा गया है कि जो कंसिस्टेंट एक्सरसाइज करते हैं, फिर वो रोज 30 मिनट्स की वॉक क्यों ना करते हो, नॉर्मल वॉकिंग नहीं, रिगरस वॉकिंग, उन लोगों को भी सीबो में आराम मिलता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, जिन लोगों को सीबो की या डाइजेस्टिव इशू की या डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो कभी भी आप हैवी मील नहीं खाओगे। वो दिन में 5-6 छोटी छोटी मील्स खाएंगे। क्या है, जो गंदे बैक्टीरियाज होते हैं आपके अंदर, हमको उसे खाना नहीं देना है। हेवी मील खाओगे, ज्यादा मील खाओगे तो हम उसको खाना दे रहे हैं, वो ओवरग्रोथ हो जाएंगे, वो फैलने लगेंगे। हमें छोटी छोटी मील खानी है। छोटी छोटी मील क्या होती है, जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। अच्छा, उसका गुड पार्ट क्या है कि आप मोटे बिल्कुल नहीं होंगे, ना ही आपको गिल्टी फील होगी कि यार मैं 6-7 मील खा गई। बट मील शुड बी वेरी स्मॉल, बॉडी इजीली डाइजेस्ट करेगा। स्मॉल मील है, इट विल डाइजेस्ट इजीली, और आप वेट रिड्यूस करोगे। आप खुद देखोगे कि मैंने जो छोटी छोटी मील्स खाई है, 5-6 मील्स दिन भर में, उससे बट मैं वैसे तो हम 8-10 मील खा जाते हैं। आप 3 चाय पीते हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर के अलावा, चाय के साथ कोई स्नैक्स, फिर एक चाय के साथ कोई स्नैक, फिर और कुछ। ये नहीं, गुड फूड मतलब आपकी हर मील में प्रोटीन होना चाहिए, आपकी हर मील में फैट होनी चाहिए। अच्छा खाना खाओगे आप, 5-6 मील 7 मील्स भी खा सकते हो। आप खुद देखोगे कि आपने वेट कितना ड्रास्टिकली रिड्यूस किया है। और स्पेशली जो सीबो के पेशेंट है उनको तो ये करना ही चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक मैं बहुत देसी इलाज बताती हूँ डाइजेशन का, कि जब भी आप खाना खाएं उसके बाद एक स्मॉल पीस ऑफ पाइनएप्पल जरूर लें। क्यों ले पाइन एक ही पीस, हाँ, भर के नहीं खाना है पाइनएप्पल। व्हाई? बिकॉज पाइनएप्पल हैज अ डाइजेस्टिव एंजाइम, और ये आपके डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। पाइनएप्पल ले सकते हो, यार सीजन नहीं है पाइनएप्पल का, देन यू कैन टेक डाइजेस्टिव एंजाइम। जो सबसे अच्छा डाइजेस्टिव एंजाइम अभी है, यूनिएंजाइम की टैबलेट्स ले सकते हैं आप आफ्टर मील। सो अगर मैं न्यूट्रिशन के उससे बोलूँ तो जिसको भी सीबो है या जिनको IBS की प्रॉब्लम है या जिन्हें डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको चाहिए कि वो सबसे पहले एप्पल साइडर विनीगर B10HCl से शुरू करें। B12 मैंडेटरी लेना है आपको। उसके बाद आपको ग्लूटामाइन ऐड करना है, एंड प्रीबायोटिक पाउडर लेना है, पाउडर फॉर्म में अगर कहीं मिल जाता है, केमिस्ट पे टैबलेट्स भी मिलती है, यू कैन टेक दैट। उसके बाद एक ऑरिगेनो ऑयल आता है मार्केट के अंदर, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट है। इवन काफी स्टडीज में भी देखा गया है कि जिनको सीबो है
और सीबो को खत्म करने के लिए डॉक्टर जो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं उन्हें, ऑरिगानो ऑयल इक्वली गुड है, मतलब ऑरिगानो ऑयल के उतना ही बेनिफिट है जितना कि एक एंटीबायोटिक टैबलेट्स का है। इसको लेना कैसे है? जब भी आप कोई टारगेटेड एसेंशियल ऑयल लेते हो, आपको सबसे पहले उस ऑयल को किसी करियर ऑयल में मिक्स करना है। लेट्स से आपको ऑरिगेनो ऑयल लेना है, तो आप उसको कोकोनट ऑयल में 1 बूंद से स्टार्ट कर सकते हो। उसको मिक्स करके आपको स्पून से लेना है, खाली पेट नहीं लेना है। आप कभी भी ले सकते हो दिन भर में आफ्टर आपकी मील। सो जब भी आप ये सब चीजें रेगुलेट करोगे तो आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आई नो दिस इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमारी बीमारी कहाँ से शुरू हो रही है, क्योंकि इतना मेडिकेशंस लेने के बाद, डॉक्टर के साथ इतना ट्रीटमेंट कराने के बाद हमें क्यों डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ता है? हजारों रुपए आप मेडिसिन पे खर्च करते हैं, आप इतने मल्टीविटामिन्स लेते हैं, पता चल रहा है वो ऐसे निकल के जा रहे हैं। आपको इतना ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर हो सकता है, आपको एक्जिमा हो गया, आपको जॉइंटिस हो गया, आपको पता ही नहीं चल सका, ऑल बिकॉज ऑफ दिस योर गट हेल्थ। हो सकता है आप हजारों रुपए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके अपने हेयर पे, स्किन पे बर्बाद कर रहे हो, आपको फायदा ही नहीं दे रहा है, वो ऐसे निकल के जा रहा है, क्योंकि आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, कुछ फायदा ही नहीं होगा, डाइजेशन ठीक नहीं होगा। आप मेजर पीसीओडी की प्रॉब्लम, पीसीओएस की प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, आपका डाइजेशन लीकी गट है, आप कितना भी मेडिकेशंस कर लेंगे, कितना भी ये फूड ग्रुप छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, इतना एक्सरसाइज कर दिया, आपको फायदा ही नहीं होगा। पहले अपने डाइजेशन पे काम करिए, बाकी एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। जैसे ही आपका डाइजेशन ठीक होता है, आप खुद अंदर से हेल्दी होना शुरू हो गए। व्हेन यू आर हेल्दी फ्रॉम इनसाइड, इट विल रिफ्लेक्ट आउटसाइड। कितने लोगों को आपको देखा है कि उसको, उनको मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती, बाकी लोग मेकअप लगा के जाते हैं क्योंकि हमें अच्छा, उनको फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती सेल्फी लेने में, बिकॉज व्हेन दे आर हेल्दी फ्रॉम इनसाइड, इट रिफ्लेक्ट्स इन योर स्किन, इट रिफ्लेक्ट्स इन योर हेयर। सो प्लीज वर्क ऑन योर डाइजेशन। एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम योर गट। आपका गट हेल्थ अच्छी होगी, सब कुछ ठीक होगा। और उसके बाद फिर आप अपना फिटनेस के लिए सोचिए, फिर आप घंटों एक्सरसाइज करिए, फिर आप जो है ना दूसरी चीजें सप्लीमेंट लीजिए, बट यस, फर्स्ट वर्क ऑन योर डाइजेशन।